Hello and welcome everyone. I am Anisha. So in this class, this is the last chapter of your social science, which is the economic section. Okay. So with this we'll complete your whole syllabus of your class 6. तो देखो आज हम इस वीडियो में अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस की, क्लास 6 सोशल साइंस की, और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस जो है क्लास 6 का कंप्लीट भी हो जाएगा। और इस जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं क्वेश्चन आंसर्स देना स्टार्ट कर दूंगी, नोट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दूंगी। समरी से हम स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सब कुछ मैं एक वीडियो लेके आऊँगी सेपरेटली अलग अलग चैप्टर्स का। तो और आप हाँ ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी पहुंचते रहे। क्वेश्चन आंसर्स जैसे ही मैं डालूंगी आपको आप नोटिफाई हो जाओ, ठीक है। एंड यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर योर लास्ट चैप्टर? सो लेट अस क्विकली बिगिन। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। देखो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर में 13 में, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है? जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिसमें मनी की लेन देन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है कि नहीं, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। तो वैल्यू क्या होता है उसकी सर्विस का? मनी होता है। तो वहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। जैसे हमें जैसे अलग अलग हमारी होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So we'll start with a quotation given by Kautilya, okay, in his Arthashastra book. Okay, this is Arthashastra is related with the economy of the country. So here he have stated that the root of prosperity is economic activity. The lack of it brings material distress. The absence of fruitful economic activity endangers both current prosperity and future growth. See here, what does this quotation means by Kautilya? He said that the root of prosperity, the root of development of any country is the economic activity, okay, is the economic condition, is the economic development of that particular country. And if a country lacks an economic activity, if a country doesn't have enough money, isn't it enough, if it doesn't run enough economic activity and if it doesn't have enough money, then what will happen? That will bring material distress, means that country will never be developed country. And in that absence of the development, in the absence of a very good fruitful economic activity, what will happen? That country future will be endangered, okay, that country's future will be endangered currently as well as on the future. That means the country will never be able to develop itself. So it is very much necessary for a country to uplift, to make its economic activity also develop, isn't it? Suppose if the person are if the peoples living in the nation are making a good economic activity, then what will happen? That will help in enhancement, in development of the country. So we should always work on economic activity, isn't it? Because what happened without economic activity, if you are not afterwards, when you grow up, if you are not doing any kind of job, if you are not earning anything, then what will happen? You will not lead a very happy life, isn't it? So in order to lead a very happy life, in order to make your nation developed, what we have to do? We should be engaged in economic activity and we should be directly or indirectly contributing towards the development of our nation. Okay, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन। तो ये कोटेशन का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे कौटिल्य जी ने क्या बताया है कि जो हमारी जो हमारी धन राशि होती है, ये एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक नेशन के लिए, स्पेशली कंट्री के लिए, एक देश के लिए, अगर वो देश जैसे गरीब देश होता है तो उसमें क्या होता है? उसकी आर्थिक स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब रहती है। अगर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब रही तो क्या होगा? वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होगा? जो प्रॉस्पेरिटी है, जो डेवलपमेंट है, जो फ्यूचर में भी जो डेवलपमेंट आएगी, जो वर्तमान में जो डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में क्या होगा? वहाँ पे रुकावटें आएंगी, वहाँ के लोग खुश नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अगर जैसे लोग गरीब होते गए, अगर उनके पास कोई धनराशि नहीं है तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? तो वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत बदतर हो जाएगी, है कि नहीं? तो एक देश को सुधारने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति सही है तो बाकी लोग भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल के तौर में, जैसे ही आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, आपके आसपास लोग भी मनराने लग जाते हैं ना। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो वही लोग फिर कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं होता। तो ये पावर है मनी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे तो क्या होगा? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देश के
हित में, देश के प्रॉस्पेरिटी में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौटिल्य जी ने क्या एम्फेसाइज किया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लोगों को या किसी भी देश को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, ऊपर पहुंचाने के लिए, आपके लिए भी और आपके देश के लिए भी। तो यही एक मीनिंग है इसका, ठीक है। तो हमने काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो 3 बड़े क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दी 3 बिग क्वेश्चंस, ओके, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस chapter. That is, first, how are economic activities classified? So we are going to classify these economic activities, okay. And second, what differentiates this activity to be grouped into sector? So what are the difference, okay, what are the different thing that will be, again, those activity are being again grouped into sectors. And thirdly, how are the 3 sectors interconnected? What are the 3 sectors? Primary, secondary and tertiary, and all of these are connected, okay. So how are these connected, how are they interdependent? So we are going to learn about everything in this चैप्टर, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखो जो 3 बड़े क्वेश्चन से हम जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे क्लासिफाइड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, इनको क्या डिफ्रेंशिएट करता है जो इनको अलग अलग एक सेक्टर में इनको ग्रुप किया जाता है। और तीसरे में हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन जो क्या है, जो ये अलग अलग सेक्टर है, जो 3 सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। तो ये 3 जो सेक्टर ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, कि ये कैसे एक दूसरे के साथ अगर ये काम की कोई भी अगर एक सेक्टर काम नहीं करेगा तो कैसे दूसरे सेक्टर को हैम्पर होगा, तो उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। In chapter 13 we learned about 2 types of activity, economic activity and non-economic activity। तो आपको याद है ना जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में एक तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की थी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की थी। तो एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट्स मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी है जिससे आपको पैसा मिल रहा है, मॉनेटरी वैल्यू मतलब आपको कोई भी अगर आप चीज़ करें तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है कि नहीं। तो हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसके साथ साथ हमने जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, जैसे सेवा के बारे में हमने पढ़ा था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था स्वच्छ भारत अभियान और वन महोत्सव, याद है ना। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप काइंडली चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे वो अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो फिर जो सारा हमने एक्टिविटी देखा, तो इस टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स देम इन दिस चैप्टर। तो इसको और अच्छे से हमें लर्न और डीपली हम इसको जानने के लिए स्पेशली हम कौन सी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू हमें मिलती है, मतलब जिसके सर्विस के आप जो भी आप काम करते हो उसके बदले अगर जैसे आपको पैसा मिलता है, जैसे कि जब भी कहीं पे मनी की, पैसे की लेन देन की बात आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये कैसे क्लासीफाइड होते हैं और ये कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो इस चैप्टर में हम उस चीज़ को देखेंगे, ऑलराइट। See, in the previous chapter we have already learned about the 2 activities, that is economic and non-economic activities, isn't it? And where we have learned that economic activities are those activities where there is monetary value, isn't it, which creates monetary value. That means you are getting money in return of the work or in return of the service that you are providing, isn't it, to the society or to anyone. So here in this with that we have also learned about importance of non-economic activities, like for example the seva, isn't it, the selfless seva, the community participation, where we have learned about the Swachh Bharat Abhiyan, and after that we also have learned about the Van Mahotsav and your parents cooking food for you, your mother helping you out with the school works. So these are all under non-economic activities, and what are the values it added, what are the importance, how it strengthened our bond within the family, isn't it? So here in this chapter we are going to emphasize mainly on the economic activities, all right. So how are these economic activities classified and what differentiates them, okay, what differentiates them, we are going to see everything in this chapter. So here is an image given of a modern city, okay, modern Indian city. So how you can see there are like vehicles going around, isn't it, there are shops, there are tall buildings, but whereas in the ancient India, if you see the pictures of ancient India, you will not find such a supermarket over there, isn't it. So let us see here. Over the decades, the number of economic activities has increased tremendously. For example, earlier most people were involved in activities such as agriculture, livestock rearing,
production of tools, pottery and weaving clothes. See, as we have studied in our history section also, isn't it, like before in the ancient India, in the early India, what were the economic activities? It was very limited. Okay, it was very limited. For example, earlier the people were involved in activities such as only agriculture, livestock rearing, means you are rearing cow, buffalo, chickens, isn't it, like poultry farming and all, and productions of tools and pottery, weaving clothes. So these are some of the limited economic activities that were done in the ancient India, isn't it, that were done by the earlier people. But now if you compare now, okay, with today's world, there has been drastic change, isn't it? Now the number of economic activities have been increased very vastly, isn't it? So as society progressed, the number of economic activities through which people earn their livelihoods increased vastly. So if you see today, we are not limited the occupations, we have unlimited number of occupations now, isn't it? We are not limited within certain kind of thing, we have unlimited number of occupation, we have unlimited number of services through which we can earn money, through which we can earn our livelihood. So we are going to list some of those activity, we are going to learn about some of those economic activities. all right, तो यहाँ पे देखो, पहले अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया को, ठीक है, पहले के टाइम में जो एंशियंट टाइम में होता था, जो अर्लियर डेज में होता था, तब क्या होता था, बहुत ही कम ऑक्यूपेशंस होती थी, जैसे लोग बहुत ही कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। उनमें से जैसे मेन चीज़ आ जाती है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, लाइफ स्टॉक, मतलब भेड़ बकरियाँ वगैरह, गाय वगैरह पालना, चिकन पालना, है ना, ये सब किस में आ जाता है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग में आ जाता है, कैटल वगैरह को पालना दूध के लिए। और उसके बाद टूल्स वगैरह का प्रोडक्शन करना, जैसे वो बनाते थे ना टूल्स वगैरह, स्टोन से, वुड से वो बनाते थे, फिर पोट्री वगैरह बनाते थे, फिर क्लोथ्स वगैरह वीव करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये किससे होता था, हाथों से ही होता था ना। धीरे धीरे फिर मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती गई, जैसे जैसे सोसाइटी में सुधार आता गया, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती गई, तरक्की करती गई, क्या हो गया, ये जो नंबर ऑफ़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि बहुत लिमिटेड थे पहले, ठीक है, वो भी बढ़ते चले गए। और अब क्या हो गया, पीपल, जो लोग हैं, जो इनकी अर्निंग है, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करके वो पैसा कमाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आज के दिनों में। तो उन सब कुछ चीज़ों की कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिस्ट की गई है, यहाँ पे हमें बताया गया है। तो उन चीज़ों के बारे में हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे। टुडे देयर आर डाइवर्स, मतलब मैनी, डाइवर्स मतलब बहुत ज़्यादा, है कि नहीं, many diverse economic activities such as manufacturing computers। देखो पहले के ज़माने में तो मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर वाला तो कुछ था ही नहीं, कोई एक्टिविटी, है कि नहीं, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। और उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स एंड ड्रोन्स, जैसे मोबाइल फ़ोन हम बहुत ज़्यादा, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है अब, है कि नहीं। और अब तो क्या हो गया, ड्रोन्स वगैरह भी लोग लेने लग गए। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग, वर्किंग इन बैंक, जैसे पहले तो इसे बैंक वाला कंसेप्ट ही नहीं था, है कि नहीं, जैसे एंशियंट इंडिया में। अब क्या हो गया, बैंक में, schools में, hotels, driving various type of vehicles for transportation, making furniture, tailoring clothes using machines, creating software, repairing refrigerators and washing machines, etc. Classifying all these activities help us to understand how they function and the link they have with each other. So these are some of the economic activities listed over here which are important in today's world. For example, like manufacturing of computer, mobile phone, drones. See, the uses of mobile phone, drones, computer had been increased tremendously, isn't it? For example, the use of drone, if you want to fertilize or your field, okay, if you want to fertilize your field or anything, now you, with the use of drones and with the help of some technicians or some techniques, what you can do, you can spread the fertilizers very easily. So these are the uses of drone, isn't it? So previously these were not used, but now in today's world we have started using this. And another is working in the banking sector, working in the school or hotels, or driving various type of vehicles. We see during transportation there are big trucks, isn't it? So, and also making furniture, you have variety of furniture now. You, whatever designs you wanted, whatever designs you have thought in your mind, you will find those type of furniture in the market, isn't it? And also you will find various type of clothes, fashionable clothes, isn't it, which are being tailored, which are being made by using machine, through machine. Earlier what people used to do, they used to weave by hand, isn't it, by their hands, but now we can tailor the clothes using machines. And also creating software. See, this is very important, isn't it, with the age of, in the age of we have a digital era now, with the age of AI, isn't it, everything is been computerized. So software is very much important, isn't it, creating software like application you have in your phones, all this thing, isn't it. So again, repairing refrigerators. Earlier people do not have refrigerators, so they
don't have anyone to repair or any such concept was not present. But now what happened, each and every household have this refrigerator, and whenever there is any problem, there are some technicians who will come to make that refrigerator, isn't it? So those techniques are also what, they are also working, they are also creating economic activity, and also making your repairing your washing machines, isn't it? Earlier people used to go together in the riverside and they used to wash their clothes, but today each and every household are having washing machines. In case if there is any problem, we can call the technicians to repair it, isn't it? So there are number of activities through which now people used to generate money, people used to earn money, isn't it? So we are going to classify all these activities, okay? When we classify all this activity, it will help us to understand and the link they have with each other. All right, तो यहाँ पे देखो हमने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ देखे ना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन बनाना, कंप्यूटर बनाना, ड्रोन्स बनाना। देखो अब ड्रोन्स का तो कितना ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। जैसे खेती बाड़ी आप करते हो, अगर आपको फर्टिलाइज़र वगैरह स्प्रेड करना है तो ड्रोन को यूज़ करके वहाँ पे अटैच करके आप फर्टिलाइज़र कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप क्या करें, अपना जैसे अगर आपको 10 लोगों की ज़रूरत होती थी फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करने के लिए आपकी खेती में, तो अब क्या होगा, एक ही ड्रोन से आप सब कुछ कर सकेंगे और वो भी कम टाइम में। तो लॉन्ग टर्म्स में आपने क्या कर लिया, अपने पैसे बचा लिया, है कि नहीं? तो ऐसे करके ये सब, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन्स नहीं, जो आपके गाड़ी है, व्हीकल्स है, ठीक है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग भी। तो इसके साथ साथ जो लोग बैंक में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वहाँ के, जो क्लर्क है, जो स्कूल को चलाने के लिए सिर्फ टीचर ही काफ़ी नहीं होते ना, या फिर सिर्फ प्रिंसिपल ही काफ़ी नहीं होता एक स्कूल को चलाने के लिए, वहाँ पे एक प्रॉपर संस्था होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो सारे लोग जितने भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो जनरेट कर रहे हैं मनी, है कि नहीं? तो होटल्स में, जैसे आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पे भी, और या फिर आप बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आजकल देखते हो ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पेशली जिसकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स वगैरह होती है ऐसे, या फिर कोई फर्नीचर्स, मेकिंग फ़र्नीचर, आप जो चाहो, जैसा चाहो डिज़ाइन आपको मिल जाता है आज के टाइम में। पहले टाइम में ऐसा होता ही नहीं था, पहले तो फर्नीचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, है कि नहीं? तो आज लकड़ी से आप क्या करते हो, एक सिंपल सी लकड़ी को, जैसे हमने पिछले चैप्टर पे देखा था, एक सिंपल सी लकड़ी को काव्या के पापा ने कैसे उसको एक चेयर में बदला था, तो उसमें कैसे वो वैल्यू ऐड की थी, है कि नहीं? तो ऐसे ही मेकिंग फर्नीचर्स, टेलरिंग क्लोथ्स यूजिंग मशीन्स। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में कपड़े हम कैसे बनते थे, बुन के बनते थे, वीव करके बनते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मशीन का यूज़ कर लो फटाफट से, जैसे आपको कपड़े चाहिए, फैशनेबल कपड़े जो आजकल आते हैं, डिज़ाइंस बड़ी, है कि नहीं? तो ये सब बनते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो मॉनिटरी वैल्यू जनरेट कर रही है कि नहीं? तो ये इनडायरेक्टली क्या भी होता है, हमारे देश को डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है? या फिर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। देखो आज का टाइम तो एआई का ज़माना है आजकल का, है कि नहीं? तो सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, एप्लीकेशंस वगैरह बनाना, ये सब कुछ बनाना। जैसे कि आपके टाइम टू टाइम आपके फ़ोन्स में भी आपके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, आपके फ़ोन्स अपडेट होता है ना, नए नए फ़ोन्स आ जाते हैं। तो उसके साथ आपके रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने वाला काम, जैसे टेक्नीशियंस आ जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो आते हैं वो लोग भी तो मनी जनरेट कर रहे हैं ना, आपकी सुविधा के लिए वो आ रहे हैं, उसकी सर्विस दे रहे हैं आपको। तो ये सब जो हमने अभी लिस्ट की है एक्टिविटीज़, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये सब जब हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, जिसको जब हम क्लासीफाई करेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, तो हम जानेंगे एक दूसरे के साथ कैसे लिंक भी है, ठीक है? जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने बात की, या फिर जो क्लोथ्स बनाने की हमने बात की। जो क्लोथ्स आया कहाँ से, कॉटन से आया ना, तो कॉटन कहाँ से आया, खेती करके आया। तो ये सब कैसे क्लासीफाइड है, ये कैसे सब इंटरलिंक्ड है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एक चीज़ को हम जानेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट हम कौन सा सेक्टर को पढ़ेंगे, फ़र्स्ट हम जानेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, ठीक है? सो नाउ लेट अस क्लासीफाई, ओके। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो अलग अलग सेक्टर्स हमारे हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है? तो इसको हम पहले क्लासीफाई करेंगे और एक एक करके हम इनको जानेंगे अब, ओके? Some economic activities share similar characteristics, and based on these they can be grouped together or classified into broader groups called economic sector. The three main type of economic sector are primary, secondary and tertiary economic sector. जो three main sector है, ठीक है, जो economic sector की अगर हम बात करते हैं, जो तीन ऐसी main sector, ये further divide हो जाती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक ही आपको पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? तो अभी के लिए आप क्या समझो, जो मेन इकोनॉमिक सेक्टर है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, all right? So here
see these the main type of economic sector that we have. Okay, see here you are going to learn only about the basic. Okay, further in the greater class we'll be learning further divisions of this primary sector, secondary sector or tertiary sector, but as a main here what you have to understand now, there are three main economic sectors. Those are primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, and how are, as see, all of them they have some kind of similar characteristics, okay, based on the work which they are doing. So on that based again they are been grouped, okay, into a broader groups that we call as economic sector. All right. Okay. The illustration on the facing page map out the broad activities under this categories. अच्छा, आगे आपकी एक मैप दिया हुआ है, इसमें जैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इकोनॉमिक सेक्टर को, जैसे कि प्राइमरी के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी के अंदर क्या आता है और टर्शियरी के अंदर क्या आता है, तो हम उसको भी देख लेंगे. ऑलराइट, सो facing page we will have a map, okay, where there are differentiate given different types of activities that are listed under primary, secondary and tertiary. Like for example here see, this is the map they are talking about. ठीक है, तो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या है, उसके बाद हम इजीली इसको हम समझ पाएंगे. ओके, तो हम देख लेते हैं पहले प्राइमरी सेक्टर. Primary activities, those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sector economic activities. Primary sectors, they have given the meaning, the group of activities that involves extraction of raw materials directly from nature such as farming, fishing, forestry etc. देखो प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, जब लोग डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड करते कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर भी है, फार्मिंग भी है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग तो एक ही चीज़ है, और फिशिंग, फॉरेस्ट्री. तो जब आप नेचर जैसे माइनिंग वगैरह हम करते हैं, कोयला वगैरह माइनिंग करते हैं, डायमंड्स माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, ये आप क्या कर रहे हो, नेचर से डायरेक्टली आप उसको निकाल रहे हो, तो आप किस चीज़ पे इन्वॉल्व हो, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, तो ये किसके अंदर आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है. ठीक है, सी हियर any activity, those economic activities in which people are earning money, okay, people are earning money by depending on the nature, by whatever nature have produced, okay, those good people will be using the nature and they will be producing the goods. For example, agriculture, isn't it, farming sector, fishing, it is already there, you are not creating the fish by your own, isn't it? So, and for farming also, if there was no land, then where you are going to do farming, so land is being provided by the nature, so directly you are using the nature to produce the goods, isn't it? For fishing you will be producing fish, and from that fish again variety of other things are being produced, isn't it? And forestry, from where you'll be getting woods, and from woods again furniture, isn't it? So again from the woods again another case, from wood again what you are producing paper. So when you are involved directly, okay, when you are involved directly and or dependent directly on the nature to produce any type of goods, that is known as primary activities, okay, or primary sector. I hope you have understood. See here, चलो इसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम पढ़ेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर है, नेचर के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, माइनिंग है, देखो गोल्ड माइनिंग वगैरह हम करते हैं, डायमंड्स माइनिंग करते हैं, है ना, तो फिर या फिर फिशिंग हम करते हैं, ये प्राइमरी में आ जाते हैं. और सेकेंडरी में क्या है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई. ऑलराइट, अच्छा आपका मैप और है यहाँ पे, जो यहाँ पे देखो रेजिंग लाइफ स्टॉक, जैसे पोल्ट्री वगैरह, चिकन वगैरह, जैसे नेचर में है ना चिकन, तो उस पर आप क्या कर रहे हो, अंडे वगैरह ले रहे हो इनसे, तो अंडे को आप क्या करोगे, आगे बेचोगे, तो आप क्या कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, तो ये प्राइमरी में है. और फॉरेस्ट्री जैसे हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे वाटर सप्लाई है, सोलर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है. और टर्शियरी में क्या आ जाता है, हेल्थ केयर का आ जाता है, जैसे आपके डॉक्टर, नर्स, टीचर, होटल में जो काम करते हैं वो लोग, ठीक है. ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करेंगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने वुड काट लिया, तो उसको ट्रांसफ़र तो आपको करना पड़ेगा ना, ट्रांसफ़र कैसे करोगे, ट्रक वगैरह यूज़ करके करोगे, तो वो किस में आ जाता है, टर्शियरी सेक्टर में. कम्युनिकेशन, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो सर्विसेज है, जो एप्लीकेशंस वगैरह है, बैंकिंग, ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन, तो इस चीज़ को आप डिटेल में समझोगे जब हम ये चीज़ डिटेल में करेंगे. ओके, तो प्राइमरी सेक्टर को हम पहले समझते. प्राइमरी सेक्टर का थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, जैसे कि नेचर से हम डिपेंड करते हैं ना, नेचर पे डिपेंड करते हैं गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं वो सारे एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म्स, collecting woods from the forest, extracting coal from mines,
fish from fisheries, eggs from poultry farms, etc. are all primary sector economic activities. जैसे कि यहाँ पे देखो कल्टिवेशंस पे आप कर रहे हो काम, कुछ ग्रेन्स वगैरह उगा रहे हो, वेजिटेबल्स उगा रहे हो फार्मिंग के थ्रू, और फिर या फिर वुड आप कलेक्ट कर रहे हो कहाँ से, फॉरेस्ट से, जैसे पेड़ वगैरह काट के, और दूसरा है आप कोल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कोल तो नेचर पे है ना, अपने मेन में ह्यूमन मेड तो नहीं है ये, तो माइनिंग करके आपको कोल जनरेट कर रहे हो। उसके बाद फिशिंग कर रहे हो, उसके बाद अंडे ले रहे हो पोल्ट्री फार्म से, जैसे चिकन वगैरह रेयर करके, लाइव स्टॉक रेयरिंग करके, है कि नहीं। और या फिर जैसे दूध वगैरह से भी, ठीक है, दूध भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, काउ मिल्क वगैरह। और ये जो सारे एक्टिविटीज़ है ये कौन से है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। So we have seen some of the activities, isn't it? For example, here cultivation of grains and vegetables from the agriculture farm, and collecting woods from the forest, when you're extracting coal from the mine. See, coals are not human made, isn't it? These are there naturally, and what you are doing, you are mining it, isn't it? And after mining it, what will be doing? You'll be selling it. So after selling it, what will happen? You'll be getting money. So you are involved in economic activity, isn't it? So like fishing, fish is also there by nature, isn't it? And eggs, by rearing chickens and all, duck, chickens, isn't it? So you'll be again selling these eggs and you'll be getting money. And not only eggs, by selling milk also, isn't it? And so all these things are listed under primary economic sector activities. So I hope you have understood in primary what we have, isn't it? So in more again further detail are here. The most common primary activities are agriculture, mining, fishing, raising livestock, forestry. Below are some of the type of activities within the primary sector. So we have already discussed this. तो हमने ये already discuss कर लिया है। जो सबसे common है primary sector में वो क्या क्या है? Agriculture है, mining है, fishing है, raising livestock है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट्री है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ग्रीन हाउस फार्मिंग ये कर रही है ना, तो फार्मिंग कर रही है, तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में माइनिंग, देखो ये खुदाई वगैरह जब हम करते हैं कोल वगैरह ढूंढने के लिए, या फिर डायमंड्स की जो हाई लेवल पे अगर होता है तो डायमंड्स वगैरह का, गोल्ड वगैरह का माइनिंग होता है ना, तो वो भी किस पे आता है, प्राइमरी में आती है। और जैसे फिशिंग वगैरह यहाँ पे देखो, और यहाँ पे फॉरेस्ट्री, वुड वगैरह काट रहे है कि नहीं, और यहाँ पे देखो लाइव स्टॉक्स रेयरिंग, यहाँ पे कैमल्स वगैरह, जो भी है, जितने भी जानवर है, जो भी है, जो आप रेयर करते हो उसमें से आप कुछ जनरेट करें। जैसे कि यहाँ पे कैमल को दिखाया हुआ है ना, कैमल से आप कैसे पैसे कमाओगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ये एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर आपको जैसे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जैसे ये राउंड वगैरह करते हैं ना, मेला वगैरह में भी आप देखते होगे कैमल, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में। तो आई होप प्राइमरी तो वाला तो आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी वाला। सो आई होप इट इज़ प्राइमरी सेक्टर इज़ नाउ क्लियर। Okay, can you think of any primary activities that you have seen in the past? What are the natural resources used in these activities? Name two of them and discuss your experience with your classmate. So now we have understood about primary activities, isn't it? So anything that you have seen in your past, you can write it down. Okay, you write it down in the notebook as well as in the comment section also. All right, and what are the natural resources used in it? For example, in farming, what will be the natural resources used? The seeds, isn't it? Seeds are not human made. You'll be using seeds, you'll be using water, you'll be using manure, isn't it, the natural manure. So just like that you can mention another one also, like for example another one, what you can see, coal, isn't it? So in order to mine that coal, what are the natural thing that is being used, what are the other things that are being used to extract that coal, isn't it? So you can give an example of gold also, isn't gold mining. So in order to mine that gold, what are the natural things that is being used? So you can discuss with your classmates. So now let us see the secondary activities. चलो सेकेंडरी सेक्टर का पहले मीनिंग देख लेते हैं. The group of activities that involve processing of raw material derived from the primary sector into produce for sale for consumption. देखो जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल डिराइव्ड हो गया ना, जैसे फार्मिंग करके आपको क्या मिला, गेहूँ मिल गया, तो गेहूँ को आगे आप क्या करोगे, गेहूँ डायरेक्टली तो नहीं खा सकते ना, गेहूँ को आप प्रोसेस्ड करोगे, उसको आटा बनाओगे. तो जो प्रोसेस्ड करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो जिस प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में आ जाती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में. ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे, चलो डिटेल में. See, secondary sector in short, let me just explain you. Okay, like for example those raw materials that you are getting from the primary sector, for example wheat, let us say. Okay, after farming wheat grains, you will be getting wheat, you will be getting wheat.
but again that wheat should be converted into flour, isn't it? If you are not generating that wheat into flour, then what will happen? You cannot directly eat that wheat, isn't it? So that process which involve in that manufacturing of wheat or converting of wheat into flour, that is known as, that comes under secondary activity. So I'll give you another example, further example. Let us first read this out. Okay. Economic activities in which people are dependent on outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities or secondary sector economic activities. The secondary sector includes the constructions of buildings, roads, etc., and providing utilities like water, electricity, gas, and other such necessities. It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from primary sector into some other form that can be further sold or consumed. So example here, some examples of secondary sectors activities include the processing of grains obtained from agriculture field to make flour in mills, extraction of oil from groundnuts, and processing of tea leaves to derive tea. Similarly, wood from the forest is converted into furniture and paper. Cotton is used to make clothes, and steel from iron ore is used to make automobiles like car and trucks. See, देखो जो रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिल रहा है, जो नेचर से रॉ मटेरियल कौन निकाल रहा है? जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल जैसे फार्मिंग का मैंने आपको बात किया, फार्मिंग के बारे में आपको मैंने बताई थी ना, तो जैसे कि वीट को, यहाँ पे भी एग्जांपल वही दिया हुआ है, ग्रेन्स को आप क्या करोगे सेकेंडरी एक्टिविटी में? क्या है, जो ग्रेन्स मिला है प्राइमरी सेक्टर में उसको हम क्या करते हैं, फील्ड में लेके जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से जो ग्रेन्स हमें मिलता है उसको हम क्या करते हैं, जो वीट हमें मिलता है उसको हम फ्लोर में बदलते हैं, मील में जाके। जो प्रोसेस होता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि ग्रेन को वीट में आटा में बदल दिया, तो वो जो प्रोसेस है, जो इन्वॉल्व लोग हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में आ जाता है ना, तो वो कौन सी अंडर आ जाती है? सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल जो हो, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देती हो, जैसे टमाटर किसने उगाए? फार्मर ने उगाए, है कि नहीं? तो फार्मर ने उगाने के बाद उस टमाटर को आपके पास जैसे दूसरा एक और चीज़ आ जाता है, टमाटर का क्या, आपका पास केचप आ जाता है, तो वो टमाटर डायरेक्टली फार्मर नहीं बनाएगा ना केचप, तो वो क्या करेगा, आगे जाके दूसरे लोगों को बेचेगा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगे, जो टमाटर को फिर क्या करेंगे, सॉस में बदल देंगे। तो वो जो बदलाव है, जो प्रोसेस है वहाँ पे, जैसे कि जिसने ये काम किया है, ठीक है, जो लोग इन्वॉल्व है ये बदलाव करने में, तो वो किस अंडर आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे तेल निकालना ग्राउंड से, मूंगफली की तेल, है कि नहीं? मूंगफली तो आप उगा लेते हैं, लेकिन मूंगफली से तेल आप कैसे उगाओगे? फैक्ट्रीज में जाके आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जैसे चाय पत्ती, जो टी लीव्स आप उगाते हो, खेती करते हो, लेकिन आपको जो टी पाउडर आप बनाते हो, तो टी पाउडर बनाने के लिए आपको कहाँ पे ले जाना होता है? फैक्ट्री में ले जाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ले जाना होता है। जैसे कि वुड, फॉरेस्ट से आप वुड तो लेके आते हो, लकड़ी लेके आते हो, लेकिन फर्नीचर में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में फर्नीचर्स वगैरह बनती है, जो कन्वर्ट करते हैं ना, जो जिस चीज़ में वो जो इन्वॉल्व है कन्वर्ट करे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। मतलब जो प्राइमरी ने जो रॉ मटेरियल लेके आए हैं, जब उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिर फर्दर कोई प्रोडक्ट में ये चेंज करते, तो वो कौन से सेक्टर में आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे क्लोथ्स का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉटन को तो आपको क्या करते हो, खेती करके उगाते हैं ना कॉटन, तो फिर कॉटन को बाद में कपड़े बनाने में आप यूज़ करते, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। जैसे स्टील को, आयरन ओर से आप स्टील बनाते हो, है कि नहीं? डायरेक्टली आयरन ओर तो नहीं यूज़ होता ना गाड़ियों में, तो वो स्टील कहाँ पे यूज़ होगा? कार्स में, ट्रक्स में, साइकिल में, या फिर आपके बर्तन आते हैं स्टील्स के, तो ये सब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये कौन से सेक्टर में आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। See here, the secondary economic activities, okay, it transform the raw material which has been produced by the primary sector into a finished product, okay. For example here, it is given for of grain, isn't it? First, that we obtained from the agricultural field, and after that what happened? That grain has been transformed into flour in the mills. So in that mill, whoever are working in the mill, they are under secondary sector, okay. For example, another extraction of oil from the groundnut, and processing of tea leaves to derive to tea, and processing of wood to, like from forest you'll be bringing wood, isn't it? And that wood is, when that wood has been converted into furniture, so what you are involved in? Secondary sector, isn't it? Or wood or furniture or paper. And another is cotton, like in order to make
what you need? Cotton, and cotton will come under primary sector, isn't it? And when you're converting this cotton into clothes, in what sector you are now? Secondary sector, means you have converted, isn't it, by using machines or anything. And also using of steel, isn't it, from iron ore, extracting from the iron ore. This iron ore is extracted from the nature, that is under primary sector, that will come under primary sector, isn't it? Again, you are from iron, you are making steel, isn't it? So that will come in the secondary sector. So using of raw material to make another finished raw material which can be sold or consumed will come under secondary sector. I hope this is clear. See here, examples are given. Automobile factory, here manufacturing has been done, isn't it? Textile factory, clothes are been made है, देखो यहाँ पे सिलाई वगैरह हो रही है, आपकी क्लोथ्स वगैरह बन रही है, यहाँ पे कार वगैरह बन रही है. तो ये सारे सेक्टर कौन से? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है. लेकिन क्या ये बिना प्राइमरी सेक्टर के यहाँ तक पहुँच सकते थे? नहीं. बिना कॉटन के या क्या ये यहाँ पे कपड़े बनाएंगे? नहीं, है कि नहीं? तो ऐसे ये डिपेंडेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे और एक इमेजेस है, जैसे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, जैसे दवाई वगैरह, जो दवाई वगैरह की जो बनाने के लिए जो केमिकल्स है, जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हो, कहाँ से आपको मिलेगा? नेचर से मिलेगा, है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर से आपको मिलेगा. तो उसको आपने क्या किया? दवाई में कन्वर्ट करके आप कौन से सेक्टर में आ गए? सेकेंडरी सेक्टर में. और जैसे फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट, जैसे कि देखो लकड़ी को कैसे ये इसमें फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे साफ़ कर रहे हैं, अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको प्लेन कर रहे हैं, कि नहीं? तो आगे जाके इसको स्मूथ कर रहे हैं, आगे जाके फिर क्या होगा? ये फर्नीचर में बदलेगा. तो ये जब ये वुड था तो कौन से सेक्टर में था? प्राइमरी सेक्टर में. जब ये फर्नीचर बन गया तब कौन से सेक्टर में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में. अब वही जो फर्नीचर जब वो बेचेगा, जो दूसरे लोग, ठीक है, जब मार्केट में जब आके जो बेचेंगे, उसको कौन से सेक्टर में आ जाता है? टार्शरी सेक्टर में, ठीक है. जो ये दवाई यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे आप केमिस्ट में जाते हो ना दवाई लेने के लिए, या फिर फार्मेसी में जाते हो, जो फार्मेसी के लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? टार्शरी सेक्टर, टार्शरी सर्विस, मतलब वो टार्शरी में आ जाते हैं. ये बनाएंगे, वो बेचेंगे, ठीक है. प्रोड्यूस कोई कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो बेचता है या जो मिडल मैन होता है हम बोलते हैं उसको, वो कौन से सेक्टर में आ जाता है? टार्शरी सेक्टर में आ जाता है. तो नेक्स्ट हम समझेंगे टार्शरी सेक्टर के बारे में, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस इन इंडिया, जो ऑटोमोबाइल्स है कितने बेचते हैं, ठीक है. पैसेंजर व्हीकल्स लाइक कार्स कितने बनते हैं, जैसे 2002 के हिसाब से, ठीक है, 45 लाख. कमर्शियल वैल्यूज़ जैसे ट्रक्स वगैरह होती है 10.3 लाख. 3 व्हीलर्स जैसे ऑटो वगैरह होते हैं 3 व्हीलर्स, तो 8.6 लाख. सबसे ज़्यादा देखो 2 करोड़ 2 व्हीलर्स सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है. चलो, यहाँ पे एक और है क्वेश्चंस, जो आपको करना है ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है ना. कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, इसका आंसर. नाउ दैट वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो आपको समझ में आ गया ना एग्जांपल्स. तो कैन यू नेम 2 मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द सेकेंडरी सेक्टर? ऐसा कोई और सेकेंडरी सेक्टर आप नाम कर सकते हो, तो आप वो नाम कीजिएगा, ठीक है, नाम लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में. All those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities or tertiary sector economic activities. These include service that we may not be able to see but which still play a very important role. For example, the driver of a truck transport grains and vegetables from the farm to the factory or the market. देखो tertiary sector वो है यहाँ पे, जैसे मीनिंग पे हम देख लेते हैं. The group of activities that involve provision of services which complement both primary and secondary sectors such as transportation, banking, management of business etc. जैसे कि देखो, जो प्राइमरी सेक्टर में फार्मर ने क्या कर लिया? टोमेटो तो उगा लिया, ठीक है. जैसे मैंने आपको केचप का एक एग्जांपल दिया था ना, टोमेटो उगा लिया, ठीक है. लेकिन वो टोमेटो को फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तक. जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? यहाँ पे ट्रक ड्राइवर करेगा. तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे सर्विस दे रहा है ना. जो जैसे वेजिटेबल वगैरह भी जो मार्केट तक कौन लेके आएगा? ट्रक ड्राइवर वगैरह या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो लेके आते हैं, कि नहीं? तो जो लेके आते हैं लोग, फिर आके उसको बेचते हैं, वो कौन से इन्वॉल्व में है? वो कौन से सेक्टर में आ जाते हैं? टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं. ये दोनों की तरफ वर्क करता है. प्राइमरी को भी कम्प्लीमेंट करेगा, ये सेकेंडरी को भी कम्प्लीमेंट करेगा. जैसे कि प्राइमरी में कैसे? जैसे टोमेटो को वो लेके आ गए, ट्रांसपोर्ट कर दिया फैक्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे वो केचप बन के आएगा. तो उस पर क्या रोल हो गया? अब जो ट्रांसपोर्टेशन का रोल किसका आ जाता है? टर्शियरी एक्टिविटीज़ का, ठीक है. और उसके बाद जब वो केचप बन जाएगा, तो केचप बनने के बाद फिर इसको बेचना पड़ेगा ना दुकानों में लाके. तो फिर बेचने का काम फिर कौन करेंगे? टर्शियरी सेक्टर वाले, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ऐसे ही, तो ऐसे ही कनेक्टेड है. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. सी हियर दीज टर्शियरी एक्टिविटीज़ like involve those person
who are complementing both primary as well as secondary sector. For example, same example I'll illustrate here also, that example of tomato. Okay, see, tomato is been produced by the farmer through farming, that is the primary sector, isn't it? So taking those tomato by the transporting those tomatoes to the manufacturing, till the manufacturing factories, okay, that involves tertiary activity. That person, that truck driver or any driver, okay, whichever service he is providing here, that involves like keeping or dropping the tomatoes till the factories. That service is known as tertiary activities. Again, after when the tomato is been converted into ketchup in the manufacturing industries, that is the secondary industry, secondary activities, isn't it? After that, again you have to sell that ketchup, isn't it? Otherwise how you are going to get it? So bringing those ketchup again in the market, that is also again under tertiary activities. I hope this is clear now, isn't it? Same thing with vegetables or any other finished product that are being brought into the market and that are being sold in the market. All right, so here further example, let us see. The fruit or vegetable vendor sells the farm produce to household consumer. See, the vegetable are being produced by the farmers, but we have to sell those also, isn't it? Those selling purpose, those those are involved in the selling service, they are also under tertiary activities. Okay. Similarly, doctor, nurse, teacher, lawyer, pilots provide their service to those who needs them. There are technicians who repair and service electronic items including mobile phones, television, mechanics who repairs vehicles like cars and tractors, and electricians who ensures regular supply of electricity. See, these are service provided to us. Means एक सुविधा जब हमें मिलती है ना सर्विस से, जैसे कुछ आपके कुछ ख़राब हो गए घर में, जैसे हमने देखा था वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, फिर लाइट ख़राब हो गई, तो आप क्या करोगे? किसी टेक्नीशियन को बुलाओगे। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आप किसी मैकेनिक को बुलाओगे, तो आपको वो सर्विस देगा, जो सुविधाएं आपको वो दे रहा है, वो किस चीज़ पे इन्वॉल्व है? वो टर्शियरी सेक्टर में। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कौन से अंडर आ जाता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर। जैसे टीचर हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कौन से कैटेगरी के अंदर आ जाती हूँ? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ जाती हूँ, है कि नहीं? या फिर नर्स, लॉयर्स, पायलट्स, जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी सुविधाओं के लिए, है ना, तो ये सब किस में आ जाते हैं? टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, टेक्नीशियंस वगैरह जो भी है सब कुछ। सो देयर सर्विस मेक्स आर लाइफ ईजी। तो इनके सर्विस के बाद हमारा लाइफ क्या हो जाता है? ईजी होता है, ईजी हो जाता है कि नहीं? देखो, सी दीज टर्शियरी सेक्टर्स इन्वॉल्व दोज एक्टिविटीज़, दोज सर्विस विच आर बीन प्रोवाइडेड टू अस, isn't it? Suppose that if you have anything to repair at your home, or if you have problem with the electricity or anything, you'll be calling the technicians to repair it, isn't it? They'll be providing you service. If your mobile phones are not working, you'll be going to the store and you'll be asking them to repair it. That means you are asking some kind of service. Those person who are involved in such a service are also under tertiary sector. That means they are with their service, our life are more easier, isn't it? Similarly, communication service through mobiles and internet, software development and service at hotels, restaurants, banks, school, hospital, airports, shops, warehouse, etc. are all example of tertiary sector economic activities. This sector is also called service sector. So apart from that, see the communication sector, जो हम मोबाइल फ़ोन में बात कर रहे हैं, जो हम इंटरनेट अभी चला रहे हैं, देखो आपके और मेरे बीच में कैसे कम्युनिकेट हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं? इंटरनेट के थ्रू और फ़ोन्स के थ्रू। और ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व है कि नहीं? अगर सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट नहीं होगा तो मैं आपको कैसे यहाँ पे ये क्लास दे सकती हूँ? तो ये सब चीज़ें जो इन्वॉल्व है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये सब किस चीज़ में आ जाती है? टर्शियरी सेक्टर में। जैसे आप होटल में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे खाना परोसते हैं ना वहाँ के लोग, वहाँ के वेटर वगैरह, तो वो कौन से सर्विस में इन्वॉल्व है? वो भी टर्शियरी सर्विस में इन्वॉल्व है। अगर आप बैंक में जाते हो, बैंक में भी अगर आपको कुछ काम है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयड वहाँ पे बैठे आपके काम करते हैं ना, आपके पैसे वगैरह जमा करना, डिपॉजिट करना, या फिर निकलवाना, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करना, वो आपको सर्विस दे रहे हैं कि नहीं? तो वो कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है? टर्शियरी सेक्टर में। जैसे स्कूल्स का मैंने आपको पहले बता दिया, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, डॉक्टर्स, नर्स, या फिर हॉस्पिटल को जो मैनेज करते सब कुछ, जो एयरपोर्ट्स में आपको सर्विस वगैरह मिलती है, फ्लाइट्स वगैरह का, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर। और फिर दुकान, ठीक है, दुकान जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आके बेचा जाएगा? दुकानों में, है कि नहीं? और वेयर हाउस मतलब जैसे स्टोर हाउस हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड, यूज और रेंटेड आउट टू शॉप। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह लार्ज नंबर में बना लेते हैं, कि लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, तो उसको स्टोर करते हैं ना एक जगह, तो उनको स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, तो उस स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज करने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउस, ठीक है।
दुकानों में जाने से पहले, मार्केट में जाने से पहले वो एक जगह रखी जाती है, जो वो जिस जगह पे उसको रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। ऑलराइट, so here similarly the communication service through mobile or internet, see you and me now we are communicating, isn't it? Without internet, without communication service, without mobile, without tablets or any, without laptops, will we be able to communicate with each other? No, isn't it? So all this service provided to you are under tertiary sector. For example, other service like in hotels, in restaurants, when you are going to restaurant, hotels, they are providing you food, isn't it? The waiters are providing you everything. So what happens, what they are doing, they are also involved under tertiary sector, like in hospitals, schools, airports, whatever service they have been provided, in shops, isn't it? In warehouse, say warehouse are a large building where stored these where products are being stored, okay, in large number before they are being sold out to market. All right, so these all services are example of tertiary sector, and these sector is also called service sector. इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सर्विस मिल रही है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, यहाँ पे देखो सर्विस एट रेस्टोरेंट, आपको जैसे खाना वगैरह लेके परोसते हैं अच्छे से, तो ये भी एक सर्विस है। तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? टर्शियरी सेक्टर में। मतलब आपकी चीज़ों को हम ये बेच रहे हैं ना, जैसे ये देखो एयरपोर्ट में जैसे हम खड़े, यहाँ पे टिकट वगैरह जो जनरेट करते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, जो स्टाफ है, वो किस चीज़ पे इन्वॉल्व है? टर्शियरी सेक्टर में। जो रिटेल स्टोर है, देखो शॉप में हम जाते हैं, खरीदते हैं, सामान वगैरह लेते हैं, तो वो किस चीज़ पे इन्वॉल्व है? टर्शियरी उस पे सेक्टर में। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डू दिस इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग सेक्टर्स। ऑलराइट, तो इस क्लास में हम यहीं तक करते हैं, वही वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम ये इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। अगर आपको स्पेशली किसी चैप्टर का अलग से पहले क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देना अगर कोई क्वेरीज वगैरह है, कुछ है तो। ठीक है, सो विद दिस आई एम साइनिंग आउट। हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।